اردو نیوز بلیٹن کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے کشمیر سٹیل TMT اور موشن انسٹیٹیوٹ، کوٹاز فاسٹسٹ گروئنگ انسٹیٹیوٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کشمیر کراؤن پر اردو خبرنامے کے ساتھ میں عاشق میر آپ کی خدمت میں حاضر۔ بلیٹن میں شامل کریں گے سب سے پہلے آج دن بھر کی اہم سرخیاں۔ شمالی کشمیر کے متھل سیکٹر میں LOC پر مختصر مورخہ رائے۔ جموں و کشمیر کے اطراف و اکناف میں بارش اور برفباری کا سلسلہ جاری۔ اپنی پارٹی کے سربراہ الطاف بخاری کا بانڈی پورہ دورہ، کہا گپکار الائنس محض ایک دھوکہ۔ بھاری برفباری کے بعد تواریخی مغل روڈ گاڑیوں کی آمد رفت کے لیے بند۔ اور تازہ برفباری کے بعد سری نگر لداخ شاہراہ اور بانڈی پورہ گریز روڈ بھی بند۔ اور اب ان خبروں کی تفصیل۔ جموں و کشمیر کے سرحدی ضلع کپواڑہ میں لائن آف کنٹرول LOC کے قریب سیکیورٹی فورسز اور مشتبہ جنگجوؤں کے مابین ایک مختصر فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ BSF کے ڈپٹی انسپکٹر جنرل نے میڈیا کو فون پر بتایا کہ 22 اور 23 نومبر کی درمیانی شب کو فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ شدید برفباری کی وجہ سے تلاشی نہیں کی جا سکی، لیکن جلد ہی دوبارہ کارروائی شروع کر دی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ فوج اور BSF مشترکہ طور پر اس آپریشن میں شامل ہے۔ پولیس کو بھی اس پر الرٹ کر دیا گیا ہے۔ جموں و کشمیر میں پیر کے روز بارش اور برفباری کا سلسلہ جاری ہے، جس کے نتیجے میں رات کے درجہ حرارت میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ اطلاعات میں بتایا جا رہا ہے کہ مرکز کے زیر انتظام علاقے کے بالائی علاقوں میں گزشتہ شب سے بھاری سے درمیانہ درجے کی برفباری، جبکہ میدانی علاقوں میں بشمول شہر سری نگر میں بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات نے پیشن گوئی کی ہے کہ بادل برسنے کا سلسلہ بدھ تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ بارش اور برفباری کی وجہ سے تواریخی مغل روڈ کو بند کر دیا گیا ہے، تاہم سری نگر جموں شاہراہ اگرچہ آخری اطلاعات موصول ہونے تک کھلی تھی۔ اس دوران سری نگر میں کم سے کم درجہ حرارت 5.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جبکہ جموں میں گزشتہ رات کم سے کم درجہ حرارت 7.11 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ سرما کی کیونکہ آج پہلی برفباری ہوئی ہے میدانی علاقوں میں، اس سے لوگوں میں بھی ایک سکون اور قرار کا بھی ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں ابھی برفباری ہو گئی ہے۔ اس سے جو ابھی بہت عرصے سے یہاں بارش نہیں ہوئی تھی، زمین بھی بالکل سوکھی پڑی ہوئی تھی، ایک ڈراٹ جیسا صورتحال بنی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں جو ہمارے آبی وسائل ہیں ان میں بھی بہت حد تک تشویشناک حد تک کمی آئی تھی، جو اب اللہ کے فضل و کرم سے یہاں ابھی درست ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی یہاں آپ دیکھ لیجئے سرما کے آغاز کے ساتھ ہی یہاں پر جو ہی یہاں سے دربار منہ چلا جاتا ہے، یہاں برفباری سے پہلے ہی یہاں آپ دیکھ لیجئے پانی اور بجلی کا خاص کر جو مسئلہ ہے وہ اس کا سنگین بحرانی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اب سرکار کو چاہیے کہ وہ ہمیں یہاں اگر وہ 24 گھنٹے بجلی نہیں دے سکتے، کم سے کم 18 گھنٹے تو بجلی دے، کیونکہ آج کل آپ بھی جانتے ہیں کہ بچوں کی جو تعلیم ہے کووڈ کی وجہ سے وہ اب آن لائن ہو گیا۔ جب ہمیں یہاں گھروں میں لائٹ نہیں ہوگی تو بچے پڑھیں گے کیسے؟ اور جو ہماری جو یہاں کاروباری سرگرمیاں ہیں اس سے بڑی متاثر ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیجیے دکانوں میں اندھیرا گپ اندھیرا ہے، گراہکوں کو کیسے دکاندار سامان دکھائے گا، وہ بھی دیکھنے والی بات ہے، اور اس پر سمجھنے کا وہ یہ مسئلہ ہے، بہت ہی ضرورت ہے اس کی، ہمیں یہاں لائٹ کی۔ ادھر دوسری جانب برفباری کے پیش نظر تواریخی مغل روڈ کو گاڑیوں کی آواجاہی کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ حکام نے کہا ہے کہ مغل جنوبی ضلع شوپیاں کی طرف سے روڈ علاقے میں آج صبح سے بھاری برفباری ہو رہی ہے، جس کے نتیجے میں اس شہرہ پر گاڑیوں کی نقل و حمل ممکن نہیں تھی۔ انہوں نے کہا ہے کہ پیر کی گلی علاقے میں کم از کم 1 فٹ برف جمع ہوئی ہے اور آخری اطلاع موصول ہونے تک وہاں موسم مسلسل خراب تھا۔ مغل روڈ جنوبی ضلع شوپیاں کو پونچھ ضلع سے ملاتا ہے۔
यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से तिजारती वक्फे का। वक्फे के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी। रहबर एजुकेशन फेयर अब आपके शहर बारामूला में। शिमाली कश्मीर में पहली बार तालीम को बढ़ावा देने के लिए 25 और 26 नवंबर को एक एजुकेशन सेमिनार मुनक्किद होने जा रहा है। हमारे जरिए आप मौके पर ही एडमिशन्स हासिल कर सकते हैं। मुल्क के साथ साथ बैरून ममालिक में भी आप एडमिशन्स के लिए दाखिला कर सकते हैं। तो याद रखिए 25 और 26 नवंबर को गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बारामूला में सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक आप तशरीफ़ ले आ सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबरात हैं 7006 115041, 7006 951581, 7006 261866। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, बारामूला नॉर्थ कश्मीर में एक बहुत बड़ा स्कॉलरशिप इवेंट होने जा रहा है जिसे रहबर ट्रस्ट स्पॉन्सर कर रहा है, जो 25 और 26 नवंबर को गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बारामूला में मुनक्किद हो रहा है, जिसमें इंडिया और अब्रॉड के बहुत सारे कॉलेज ने हिस्सा लिया है। आप सबसे गुजारिश है आके इस इवेंट को सक्सेसफुल करें। So come and join the biggest education fair of North Kashmir. Thank you. मुल्क किस तमीर से तरक्की मज इश्तराक तुहंदिस प्रत कदमस पे तुहंद हम सफर कश्मीर टर्बो TMT सरी चाहे बुनुलीतन या तूफान महफूज रूज़ तो तुहंद मकान पान नयो तुहंद पनुन कश्मीर टर्बो TMT सरी ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। वक्फे के बाद आपका फिर से खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह अल्ताफ बुखारी ने आज शुमाली कश्मीर के बांडीपोरा जिले का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने अवामी वफूद से एक जलसे से खिताब करते हुए कहा कि अपनी पार्टी अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है। उन्होंने आखिर पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि गुपकार अलायंस महज एक धोखा है। उन्होंने हमारे नुमाइंदे को बताया कि गुपकार अलमिया से लोगों को सिर्फ धोखा ही मिल सकता है। की पब्लिक कांटेक्ट मुहिम का आगाज़ किया और बांडीपोरा से शुरुआत किए देते हैं। और आपको मालूम है ये इस जो DDC चुनाव हो रहे हैं इसके हवाले से हम इनके साथ बात करना चाहते थे, पार्टी का एजेंडा क्या है और हम किस चीज़ पे वोट मांग रहे हैं। मैंने जैसे आपने सुना होगा अभी लोगों से यही अपील की किसी ये कोई रेफरेंडम की बात नहीं है, ये तो डेवलपमेंट एजेंडा के लिए इलेक्शंस हो रहे हैं। जैसे BDC के चुनाव हुए, पंचायत के चुनाव हुए, अब DDC का होगा जहां प्लानिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो जाएगी। एक और मौका मिलेगा लोगों को कि खुद अपनी प्लानिंग डिस्ट्रिक्ट की करें। मुझे उम्मीद है कि लोग हमें भरपूर साथ दे देंगे। और 28 तारीख से जो इलेक्शन शुरू हो रहे हैं, मैंने सबको अपील की कि अपनी पार्टी का चुनाव निशान जो बैट है उस पर बटन दबाइए और हमारे उम्मीदवारों को कामयाब करिए। जिला बांडीपोरा में DDC इलेक्शंस के लिए नौजवानों की नॉमिनेशन का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आने वाले ज़मीनी इंतखाबात के हवाले से ज़िले में चंद अहम बातें सामने आ रही है। एक तो हर हलके से बड़ी तादाद में नामजदगी के लिए फार्म दाखिल किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी जानिब नॉमिनेशन के लिए तालीम याफ्ता नौजवान कागजात दाखिल कर रहे हैं। चंद रोज़ कबल जहां एक तरफ बोनाकोट ब्लॉक से कई नौजवानों ने कागजात दाखिल कराए, वहीं आरन ब्लॉक से आज 2 तालीम याफ्ता नौजवानों ने DDC इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी दाखिल कराए। इनमें से एक मुश्ताक अहमद मीर है जिसका ताल्लुक कुनन गांव से है। मुश्ताक अहमद ने फिलॉसफी में MPhil की डिग्री हासिल की है, जबकि दूसरे नौजवान मोहम्मद अब्दुल्ला पोसवाल का ताल्लुक आरन गांव से है। मोहम्मद अब्दुल्ला ने मास्टर्स डिग्री हासिल की है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि जो आप यहाँ आए। और सीधी सी बात है कि आज मैंने जो है अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरा है एरन कॉन्स्टिट्यूंसी से। जहाँ तक आप देख रहे हैं कि हमने जैसे ये हमें अपॉर्चुनिटी आई तो हमने बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया है। इसलिए लिया कि आप जैसे कि देखते हैं 1947 से हमारी कौम की जो हालत है वो आप सभी के सामने है। 1947 से लेकर इस कौम को ज़बरदस्ती जो है पीछे धकेला गया है बहुत सारे लिहाज से। और इस मंशूर से मैं आया हूँ कि
क्यों ना, इफ़ नॉट वी देन हु? अगर हम में से नहीं तो फिर कौन, और आखिर कब तक हम इस चीज़ का वेट कर रहे हैं? अगर इस टाइम मैं इस चीज़ को समझता हूँ तो ये ज़िम्मेदारी मैं उठा सकता हूँ, तो मैंने इसलिए ये फ़ैसला किया कि नहीं, मेरा आना इसलिए ज़रूरी है कि ये जो है लीडरलेस कौम है, इनकी आवाज़ आज तक किसी ने उस जनवन लिहाज से नहीं सुनी, और यही मंशूर लेकर मैं आया हूँ कि अपनी कौम की खिदमत कर सकूँ। कॉन्स्टिट्यूंसी से मैंने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में आज तक किसी भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव या पॉलिटिकल मैजिस्ट्रेट पॉलिटिक्स ने इलेक्शन नहीं लड़ा, चाहे वो लेजिस्लेटिव इलेक्शन हो या पार्लियामेंट। और मुझे लग रहा है कि जिस तरह से मॉडल से लेकर कुडारा तक मेरे इस रहने वाले एरिया में लोगों को सिर्फ वोट बैंक की हैसियत से इस्तेमाल किया गया है, और इसी सियासी इस्तिसाली के खिलाफ हम मैदान में आए हैं। और मुझे पता है कि इसको डीडीसी इलेक्शन का दूसरा नाम अगर आप जानना चाहेंगे तो इसको गवर्नेंस एट ग्रास रूट लेवल कहते हैं, या इसको नौजवानों का इलेक्शन कहते हैं। और मुझे उम्मीद है कि मेरे इस एरिया में कोनन से लेकर कुडारा तक और दर्दपुरा से लेकर बापुरा तक, शमथन से लेकर बिल्कुल चूंटी मुला तक जो नौजवान रह रहे हैं, उनको पता है कि उनको कैसा जवान चाहिए, उनको कैसा लीडर चाहिए, उनको कैसा रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। क्योंकि जो बेसिक इश्यूज है, जो बुनियादी ज़रूरतों का फुकदान बिल्कुल 1970 से आज तक मेरे इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहा है। और जिस तरह से यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स ने सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की हैसियत से मेरे इन नौजवानों को, रहने वाले लोगों को इस्तेमाल किया है, बिल्कुल हम इसका खात्मा करने आए हैं, और इंशाल्लाह वी विल डेफिनेटली किक देम आउट फ्रॉम दिस कॉन्स्टिट्यूंसी। हुक्काम ने पीर को बताया है कि ताज़ा बर्फबारी के बाद श्रीनगर, लद्दाख शहरा और बांडीपोरा गुरेज रोड को एक बार फिर से गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। गुरेज वादी में गुज़िश्ता शाम से देर गए बर्फबारी शुरू हो गई, जिससे चारों तरफ की सफ़ेद चादर भिज गई। एसडीएम गुरेज के मुताबिक बांडीपोरा गुरेज रोड को बर्फबारी की वजह से आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। हुक्काम ने कहा है कि वादी गुरेज में कम से कम 1 फुट बर्फ जमा हुई है। वहीं दूसरी जानिब श्रीनगर, लद्दाख शहरा को एहतियाती तौर पर आमदोरफ्त के लिए भी बंद कर दिया गया है। ताज़ा बर्फबारी की वजह से कुलनगुंड और गगनगीर में सड़क पर फिसलन पैदा हो गई है, जिसकी वजह से द्रास और सोनामर्ग में सैकड़ों गाड़ियां दरमांदा हुई है। वादी कश्मीर के दीगर बालाई इलाकों से भी बर्फबारी की इतला मौसूल हुई है, जबकि मैदानी इलाकों में बशमूल श्रीनगर में गुज़िश्ता रात से बारिश का सिलसिला जारी है। आज के उर्दू खबरनामे में इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान आशिक मीर, एडिटर सोफी सजाद को इजाज़त, इस वादे के साथ कि हम करते हैं आपकी बात और कहते हैं सच, जिम्मेदारी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। उर्दू न्यूज़ बुलेटिन को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है कश्मीर स्टील टीएमटी और मोशन इंस्टीट्यूट, कोटा's फास्टेस्ट ग्रोइंग इंस्टीट्यूट। रहबर एजुकेशन फेयर अब आपके शहर बारामूला में शिमाली कश्मीर में पहली बार तालीम को बढ़ावा देने के लिए 25 और 26 नवंबर को एक एजुकेशन सेमिनार मुनक्किद होने जा रहा है। हमारे जरिए आप मौके पर ही एडमिशन्स हासिल कर सकते हैं। मुल्क के साथ साथ बैरून ममालिक में भी आप एडमिशन्स के लिए दाखिला कर सकते हैं। तो याद रखिए 25 और 26 नवंबर को गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बारामूला में सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक आप तशरीफ़ ले आ सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबरात हैं 7006 115041, 7006 951581, 7006 261866। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, बारामूला नॉर्थ कश्मीर में एक बहुत बड़ा स्कॉलरशिप इवेंट होने जा रहा है, जिसे रहबर ट्रस्ट स्पॉन्सर कर रहा है, जो 25 और 26 नवंबर को गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बारामूला में मुनक्किद हो रहा है, जिसमें इंडिया और अब्रॉड के बहुत सारे कॉलेज ने हिस्सा लिया है। आप सबसे गुजारिश है आके इस इवेंट को सक्सेसफुल करें। So come and join the biggest education fair of North Kashmir. Thank you.